نہیں میں بتا رہا ہوں ویسے. اچھا ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ پازیٹیو تھنکنگ. پازیٹیو تھنکنگ کے بارے میں بتانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پازیٹیو تھنکنگ کیا نہیں ہے. جو ہم سوچتے ہیں کہ یہ پازیٹیو تھنکنگ ہے اس کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ اصل میں وہ جو پازیٹیو تھنکنگ نہیں ہوتی جو اکثر ہم سوچتے ہیں. سب سے پہلے جو ہم پہلے نمبر پہ جو ہم سوچتے ہیں کہ یار یہ جو ہے نا جو ہم سوچ رہے ہیں یہ ہوگا. اگر ہم اس کے بارے میں سوچتے رہیں گے اور یہ آخر ہوگا ہماری سوچ کے مطابق یہ لازمی ہوگا. پہلے نمبر پہ یہ پازیٹیو تھنکنگ نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ ہے کہ ہم جو ہے نا کوئی ہماری کوئی وش ہے, ہم کوئی چیز پانا چاہتے ہیں, ہمارا کوئی ایم ہے, اس کے بارے میں ہم سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ سوچتے رہیں گے, اس کے بارے میں ہم سوچتے رہیں گے اور اچھا سوچتے رہیں گے, پازیٹیو سوچتے رہیں گے تو یہ ہمارا کام لازمی ہوگا. یہ بھی پازیٹیو تھنکنگ نہیں ہے. تیسرے نمبر پہ فیوچر کے بارے میں کہتے ہیں, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار فیوچر کے بارے میں اچھا سوچو. جب اچھا سوچو کہ جو جیسا سوچو گے ویسا ہوگا. سوچتے رہو گے کہ اچھا ہوگا, برا کوئی نہیں سوچتے کہ برا نہیں ہوگا. برا کا مطلب کہ ہمارے ساتھ یہ برا نہیں ہوگا, تو وہ بھی پازیٹیو تھنکنگ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ تین چیزیں پازیٹیو تھنکنگ میں نہیں آتی جو ہم سوچتے ہیں کہ یہ پازیٹیو تھنکنگ ہے. پازیٹیو تھنکنگ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ انریئلسٹک وشفل تھنکنگ ہے. جو ہماری خواہش ہے, یہ ہماری وش ہے, امیدیں ہیں, لیکن یہ اس کا پازیٹیو تھنکنگ سے دور کا کوئی واسطہ نہیں ہے. پازیٹیو تھنکنگ کیا ہے؟ ایک مثال آپ کو دیتا ہوں, میرے علاقے کی بھی مثال ہے. ایک لڑکا تھا, ہمارا سینئر تھا, اس نے جو ہے سر ایسے سینئر گول بنایا ہوا تھا کہ انٹر دے گا MBBS کرنے کے لیے. انٹر ٹیسٹ کے ہوتا ہے نا MBBS کے لیے, تو اس نے گول بنایا ہوا تھا کہ جو نا میں کوشش کروں گا نمبر ایسے سینئر اس کے اچھے نمبر آ گئے, میٹرک میں بھی اچھے نمبر تھے, انٹر ٹیسٹ میں اس نے تیاری کی, اس کا کلیئر نہیں ہوا, تو اس نے سوسائڈ اٹیمپٹ کر لیا. سوسائڈ اٹیمپٹ کر لیا, خدا کے کرم سے اس کو کچھ ہوا نہیں ہے, لیکن اس نے سوسائڈ اٹیمپٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, وہ صرف ایک ہی اس میں مطلب ایک اٹیمپٹ ہوا, اس میں وہ فیل ہو گیا, ڈس ہارٹ ہوا اور اس نے جو ہے سوسائڈ اٹیمپٹ کر لیا. تو بہت سی مثالیں ایسے بھی ہمارے گلی میں ایسے ہوں گے, تو کوئی ہمارے دوست ہوں گے, کسی کو جو ہے نا محبت کی وجہ سے وہ سوسائڈ اٹیمپٹ کر رہا ہے, یا جو ہے نا دل ٹوٹا ہے اس کا, وہ پریشان ہو کے بیچارہ بیٹھ گئے, زندگی میں وہ آگے نہیں چل رہا. ٹھیک ہے, نہیں وہ آپ انٹرنیٹ میں سوال سارے کرنا جو آپ سب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایسے بہت سی مثالیں ہیں جو دل ٹوٹ جاتا ہے کسی بھی اس میں. کوئی جاب ہے, کوئی جاب جو ہے نا نہیں ملی, کوئی فیوچر کی وجہ سے پریشان ہے, کوئی فائنینشیل ایشوز کی وجہ سے, کوئی گھریلو مسائل ہے, ہر کوئی نہ کوئی جگہ کسی انسان کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے, اس کے وجہ سے جو ہے نا وہ جو ہے نا پریشان ہو کے سائڈ میں بیٹھ جاتا ہے, اپنی زندگی برباد کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, ایک جو ہے نا آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں میں, سر میں نے خود بھی ایک ویڈیو میں دیکھی ہے, وہ مہیش ہے, سندیپ مہیشوری, ان کی ویڈیو میں دیکھا ہے. انہوں نے جو ہے نا مثال دیا ہے, اس نے جو ہے نا زندگی کو ایک کرکٹ میچ میں سے مثال دی ہے. کرکٹ میچ, آپ جو ہے نا ایک انسان جو ہے نا آپ کرکٹ میچ کھیل رہے ہو, آپ پلیئر ہو. ٹھیک ہے, آپ یار شباب میرا فروٹ ہو گیا سر, وہ بار بار پیچھے دیکھ رہا ہے. صحیح ہے, آپ ادھر بیٹھ جائیں سر. ایک منٹ, وہ میری وہ سچ بات سن رہا ہے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا فلوٹ ہو گیا. چلو کنٹینیو. سنو میری. اچھا سر, ایک انسان ہے, میں خود کی مثال دے رہا ہوں. میں ادھر زندگی کے میدان میں کھڑا ہوں, کرکٹ میچ کے مثال میں کرکٹ میچ دے رہا ہوں. میں ادھر بیٹنگ کریز میں کھڑا ہوں, سامنے جو ہے نا میرے جو بولنگ کرا رہی ہے وہ زندگی ہے, پیچھے جو وکٹ ہے وکٹ بھی نہیں ہے, وکٹ کیپر نہیں ہے, فیلڈر کوئی نہیں ہے, پورے گراؤنڈ میں کھڑا ہوں اور میرے سامنے جو بولنگ کرا رہی ہے وہ زندگی ہے. پہلی بال آئی, میں نے جو ہے نا آگے جاننے کی کوشش کی, مس ہو گئی, تو میں سوسائڈ کر لوں, مر جاؤں. ٹھیک ہے, اگر مطلب فار ایگزامپل ہمارے جو ہے نا والدین بھی ایسا سوچتے ہیں کہ بچہ ایک دفعہ ناکام ہو گیا ہے تو وہ جو ہے نا اب کامیاب نہیں ہو سکتا, اس کی جو ہے فیوچر کے بارے میں پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. پہلی بال آئی, ہو گیا, مطلب مس ہو گئی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوسری بال آئی وہ بھی مس ہو گئی, تو دنیا والے آپ لوگوں کو جو ہے نا بالکل ناکام انسان سمجھنا شروع کر دیتے ہیں سر. یہ ہر انسان کے ساتھ یہ حل ہے. دنیا والے جو ہے نا آپ لوگوں کو جو ہے نا ناکام سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, کسی کام کے نہیں ہو آپ ایسا سوچنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن آپ کے دماغ میں وہ بات آ چکی ہوتی ہے کہ زندگی ایک کھیل ہے,
अगर आप समझ चुके हो तो आप वो उस क्रीज पे खड़े रहोगे। अगर आप जो है ना थक हार के बैठ के साइड में बैठ के रोना शुरू कर दिए, बैठ गए, तो आप जो है ना फिर खत्म है। तब आउट तब तक नहीं होंगे जब तक आप खुद मैदान छोड़कर नहीं जाते, ठीक है। इधर ना आप आउट हो रहे हैं, ना आप मतलब कोई और मसला है, सिर्फ इधर विकेट पे आप खड़े हो तो आप खड़े ही रहोगे। जिंदगी बॉल कराती रहेगी, आप जब तक डटे रहोगे आप खड़े रहोगे, ठीक है। तीसरी भी आई वो मिस होगी, चौथी आई वो मिस होगी, पांचवी आई वो भी मिस होगी, छठी पे आपने छक्का लगा दिया, तो वो पूरी 5 बालों की जो है कसर पूरी हो गई, पूरी 5 बालों की कसर पूरी हो गई ना। तो वो ऐसे मसाइल जो है हमारे जिंदगी में मसाइल आते रहते हैं, हमारी जिंदगी में मसाइल है, हजारों मसाइल आते हैं। उनमें हजारों मसाइल के बाद एक मसले को जो है उसमें आप जो है वो कर जाते हो, कामयाब उसमें हो जाते हो, तो उस पिछले जो है आपको भूल जाते हैं, वो पिछली नाकामियां आपको भूल जाती हैं, आप उस कामयाबी में हो जाते हो। उसके बाद आप एक दफा कामयाब हो गए तो आप जाके बैठ भी नहीं सकते, कि उसने आपने एक छक्का लगा दिया तो आप जाके साइड में बैठ नहीं सकते ना। कोई अगर आपने एक दफा एक छक्का मारा 10 साल बाद आप यही कहोगे मैंने पिछले 10 साल पहले मैंने एक छक्का मारा, आप एक छक्का मारे तो नहीं, आप एक छक्के क्यों मारते हो, आप 100 छक्के मारो है। जिंदगी में तो बाल करामी है, आप हर बाल में कोशिश करो, कहीं किसी बाल में छक्का लग ही जाएगा। आप इस जिंदगी में आओ, एक नहीं 100 छक्के मारो, 1000 छक्के मारो, ठीक है। ये छोटी सी मिसाल है क्रिकेट के मुताबिक, ठीक है। और उसके अलावा जो है एक और है जॉब के लिए। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि हमारी जो जॉब नहीं लग रही, हम जो है बहुत होते हैं ये भाई बैठे हैं, मुझे कई बार कहते हैं मैं बीपीएससी के जो कोशिश करनी है, तो बहुत मैं खुद कोशिश करता रहता हूँ। जॉब के लिए जो है ना आप लोग इस कंपनी में जाते हो, आप रेस्टोरेंट मैनेजर हो, आप रेस्टोरेंट किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, किसी होटल में जाते हो, आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, तो आप 2 तरह के इंसान वहां मिलते हैं, 2 तरह के इंसान मिलते हैं शबाज, 2 तरह के इंसान मिलते हैं। एक इंसान वो होता है जो कहता है कि यार मैं 5 दफा 6 दफा पहले आया हूँ, मैं रिजेक्ट हो गया, मेरी शक्ल देख के वो मुझे रिजेक्ट कर देता है, मैं किसी काम में नहीं हूँ, वो उसके तो चांसेस वैसे ही खत्म हो गए, वो तो उसका जो कॉन्फिडेंस है वो वैसे ही लूज हो चुका है, वो तो किसी काम कर रहा ही नहीं। दूसरा वो होता है कि वो कहते हैं कि भाई आमिर करके दिखाएगा, तो करके दिखाएगा, तो करके दिखाएगा, अपने आप को उस टाइम जो बूस्टअप कर रहे होते हैं कि हमारा कॉन्फिडेंस बहाल, वो टेम्परेरी तौर पे कॉन्फिडेंस आपका बहाल हो भी सकता है, ठीक है। उस टाइम के लिए आपका कॉन्फिडेंस बहाल हो भी जाता है, लेकिन जो है ना वो टेम्परेरी है। अब वो भी इंसान जब ये सोच रहा होगा कि मैं जो है ना कामयाब होगा, मैं आया हूँ, मैं जॉब लेकर जाऊंगा, तो उसके माइंड में एक साइड पे ये ख्याल शुरू हो जाता है कि वो ख्याली ब्लॉग बनाना शुरू करता है कि मेरी जॉब लगेगी, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, बहुत से जो है ना अपनी उसकी विशेष होती है वो पूरी करने के लिए सोचना शुरू कर देता है, वो ख्वाबों का महल शुरू कर बना देता है, ठीक है। दूसरी तरफ में कोई खौफ भी उसके अंदर बैठ जाता है कि अगर मेरी ना लगी तो मेरे फाइनेंशियल इश्यूज है, अगर कोई जो भी मसाइल चल रहा है वो भी तो मेरे साथ मसाइल है, ये 2 सोचें उसके साथ होती हैं, तो वो बेचारा भी कहीं ना कहीं जो है ना उसका कॉन्फिडेंस हो जाता है। तीसरे नंबर पे अगर आप लोगों ने जॉब लेनी है तो आप जो है ना उस टाइम जो आपकी जॉब प्रोफाइल है, कंपनी है, जिस कंपनी में गए हो, जो इदारा है उस फील्ड में, उस फील्ड के मुतालिक आपके पास टोटल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। उसके आप जो है ना वो करो, रिसर्च करो, उसके जॉब प्रोफाइल के बारे में रिसर्च करो, कंपनी के बारे में, और देखो कि आप इस कंपनी को फायदा, अपना फायदा नहीं देखना कि आपको जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है, जो बाकी आए हुए उनको भी तो जरूरत है, एक सीट है 100 बंदे आए हुए, 100 को भी तो जरूरत है, आप सिर्फ अकेले आपको तो नहीं है जरूरत, उनके भी मसाइल हैं, सारा कुछ है, ठीक है। तो आप जो है ना अगर आपने जॉब लेनी है तो आप उस कंपनी का फायदा देखें, उस इदारे का फायदा देखें, उस फील्ड के बारे में आप रिसर्च करें कि मैं अगर जाता हूँ तो मैं इस इदारे को, इस कंपनी को मैं क्या फायदा दे सकता हूँ, उस जॉब प्रोफाइल के बारे में आपने रिसर्च करना है। जब आप रिसर्च आपके माइंड में बैठ जाएगी ना, तो आप जब इंटरव्यू जो लेने वाला होगा उसके पास जब आप पहुंचोगे ना, तो अगर वो सवाल वो नहीं भी करता ना अपनी जॉब प्रोफाइल के बारे में, लेकिन वो आपकी आंखों में देख लेगा आप कितना कॉन्फिडेंस, आपका एक ओवर कॉन्फिडेंस होगा, एक लो कॉन्फिडेंस होगा। जो रिसर्च वाला होगा उसको पता लग जाएगा, जो इंटरव्यू लेने वाला होगा वो आपकी आंखों में देख लेगा कि ये जो है ना कितना रिसर्च करके आया है। जब वो आपकी जॉब लगेगी आपके माइंड में यही होगा कि अगर मैं तो जितना अपना 100% दे सकता था इस जॉब इंटरव्यू के लिए, मैंने तो दिया है, ठीक है, मैंने कोशिश की है, रिसर्च किया, सारा कुछ किया। उसके बाद जो है ना वो
लग गई तो वो यही सोचेगा लग गई तो ठीक है, मेरा भी फायदा है, उस कंपनी का भी फायदा है, नहीं लगी तो मैं कहीं और ट्राई कर लूंगा, उस कंपनी का भी घाटा है, वो अपना कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस को इसको बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है ना मोहब्बत की मिसाल देते हैं शहबाज साहब, ठीक है, मोहब्बत की कोई आप में से भी बहुत से होंगे जिन पर किसी के साथ अफेयर हो गया है, दिल जले में होंगे, किसी का अफेयर होगा, किसी का सीरियस रिलेशनशिप चल रहा होगा, कोई किसी का 3 साल से चल रहा होगा, किसी का 7 साल से चल रहा होगा, किसी का 5 साल से चल रहा होगा, किसी का 1 साल से चल रहा होगा, ठीक है, खुश हो रहे बेचारे को मिली नहीं होगी। मेरा 2 महीने का चला था और मेरा काम पक्का हो गया। तो भाई ने निकाल कर दिया। अच्छा, निकाह हो गया ना, 2 महीने आपने रिलेशन रखा, आप में कोई मसला नहीं है, आपने कहा कि यार ये जो है ना आगे भी जिंदगी में छक्का नहीं, आगे भी मेरा जिंदगी में कोई मसला नहीं होगा, इस सोच पे पॉजिटिव ये है, इंशाल्लाह पढ़ो, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग हम पढ़ रहे हैं, पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में, ये है रियलिस्टिक पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है आप जो सोचते हो कि हमारे साथ अच्छा होगा, ये है अनरियलिस्टिक विशफुल थिंकिंग, ये हमारी जो उम्मीदें होती है, ये हमारी ख्वाहिशें होती है कि हम जो है ना हमें हमारे साथ ऐसा होना चाहिए, ठीक है। जो पॉजिटिव थिंकिंग है वो ये है कि अगर हमारे साथ जिंदगी में अगर आप 2 महीने रिलेशन रहा, उसके बाद निकाह हो गया, आपकी शादी होनी है, शादी के बाद आपके मसाइल भी तो जिंदगी में होंगे, हर रोज नया मसला होगा, प्रॉब्लम ये हर इंसान के साथ चलती है, तो आप कोई मसला होगा, किसी का भी कसूर हो, ठीक है, आपने जो है ना उसमें वो नहीं करना, बहस नहीं करनी, तो आपने अगर पॉजिटिव थिंकिंग है आपके पास, पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब समझने की कोशिश करनी है, तो वो ये है कि आपने रिलेशनशिप में कोई मसला है तो उसका सोल्यूशन के बारे में सोचना है, लड़ना नहीं है, रास्ता निकालना है, ठीक है। अगर आप इस पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब इस तरह समझ सकते हैं तो आप फिर आप जिंदगी अच्छी गुजार सकते हैं, ठीक है। चलो अच्छा, इसके अलावा सर हम जो है ना दुनिया के बारे में क्या हैं दिल्ली में तो बंदे बैठे हैं, आप जरा सुन लो। क्या हो यार, एक तो जो है ना फ्लो एक बात आज क्लास में शैतानी कर रहे हैं। ये जब फ्रंट पे जाएंगे ना तो आपस में कान में बातें करेंगे, तो मैं इनसे बात में पूछूंगा लास्ट में कि बताओ कैसा फील कैसा फील कैसा लेकिन साइड हो गई तो पूरी पूरा आगे देखने के बाद नीचे थोड़ा आता है तो तब कैसा फील मैंने अभी सामने बोलिए कैसा फील हो रहा है, ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या वैसा है ना, सही बात है। कोई बात बेस्ट शहबाज में मस्ती नहीं है, नेक्स्ट पे नहीं शहबाज हाँ अच्छा, अब हम ना उसमें देखते हैं पॉजिटिव इसका जो है ना मैं जो हूँ ना इस दुनिया को कैसे देखता हूँ, किस नजरिए से देखता हूँ, ठीक है। ये जो ना ये मैंने वीडियो देखी है संदीप महेश्वरी की, वो ना एक सांस ऐसे लेता है ऐसे, फिर ये छोड़ता है, फिर सांस लेता है, फिर छोड़ता है, उसके बाद वो सांस रोक लेता है, ठीक है। ये जिंदगी भी तो हमारी ऐसे ही है कि हम कोई पता नहीं अगले लम्हे हमारे साथ क्या हो जाए, हमारे साथ अगले लम्हे क्या हो जाए, हम जो है ना अपने फ्यूचर के बारे में ऐसे सोच के परेशान क्यों, हम जो फ्यूचर में हमारी जो वो पड़ी है पावर पड़ी है, हम सोच रहे हैं फ्यूचर के बारे में, सोच रहते हैं कि मतलब क्या होगा क्या होगा क्या होगा, वो जो पावर एनर्जी हम फ्यूचर की सोच में लगा रहे हैं वो, और जो पास्ट में हमारे साथ बुरा हुआ है, जो कुछ भी हुआ है, उसकी एनर्जी जो उस पास्ट में रखी हुई है, दोनों को जो है ना इकट्ठा करके उस इस मोमेंट में प्रेजेंट में लेकर पूरी जो भी आप काम कर रहे हैं, जिस चीज़ में भी आप काम कर रहे हैं, जॉब के लिए कर रहे हैं, किसी कारोबार के लिए, किसी चीज़ में भी कर रहे हैं, वो उस प्रेजेंट में लगाएं तो आपका फ्यूचर जो है ना सिक्योर है, आपका फ्यूचर अच्छा रहेगा। आपको पता नहीं है कि अगले लम्हे क्या हो जाए, आपको पता है किसी को पता है कि अगले लम्हे क्या हो जाए, तो अगले फ्यूचर का हमें पता नहीं है, तो इसलिए जो है ना आप अपने प्रेजेंट को जो है अच्छा करें, फ्यूचर आपका उसका खुद अच्छा हो जाएगा। हाँ स्पीच कंप्लीट हो गया, ठीक है यार, पढ़ने के लिए सही है।